इसी के लिए वो जोरदार से ताली बजाकर और स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. How many are ready to listen the word? कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? Praise the Lord. Hallelujah. How many are ready to receive the word? कितने लोग तैयार हैं वचन को पाने के लिए? Amen. Praise the Lord. We'll take the word Proverbs. नीति वचन निकालेंगे Chapter 3, तीसरा अध्याय verse from 5. पांचों वचन से पढ़ेंगे। Here word says, यह वचन कहता है, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. From 5, Yeah, just to read 5. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। No, we will read. We will meditate from still 10, but now we will take only 5 and 6. हम मनन करेंगे 10 तक, पर अभी हम सिर्फ 5 और 6 पर ध्यान देंगे। Here in these words, the Lord will speak about 3 things. यहाँ इस वचन में परमेश्वर 3 बातों के बारे में बात कर रहा है। Not only this 5 and 6, from 5 to 10. सिर्फ 5 और 6 नहीं, परंतु 5 और 10 तक। The first it says how to trust, why we have to trust in the Lord. पहला कहता है कि क्यों हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। In the second 7 to 8 says how we will have the good health. और 7-8 कहता है कि हमें कैसे सेहत मिलेगी। The 9 and 10 says how we will have prosperity. 9 और 10 कहता है कि हमें समृद्धि कैसे मिलेगी। Then we'll see first the trust in the Lord with all your heart. पहले हम देखेंगे कि यहोवा को पूरे मन से भरोसा करें। What it says here, trust in the Lord. When we have to trust in the Lord? कभी हमें भरोसा करना है परमेश्वर पे। Trust in the Lord when we are in the church. क्या कहता है वचन में? परमेश्वर पे भरोसा रखो जब हम कलीसिया में हैं तभी। Trust in the Lord when we have full of money in the account. जब हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, सिर्फ तभी ही परमेश्वर पर भरोसा करना है। What it is written in your Bible? आपके बाइबल में क्या लिखा है? In my Bible it is written like that. Trust in the Lord when you are in the church. मेरे बाइबल में ऐसे लिखा है कि तुम जब चर्च में होते हो, कलीसिया में होते हो, तभी भरोसा करो। It is written like that in your Bible. आपके बाइबल में भी ऐसे लिखा है ना? What it is written? कैसे क्या लिखा है? Trust in the Lord when we have full of money in our hand. तभी भरोसा करो जब अपने हाथों में पूरा हाथ भरकर पैसा होगा, तब भरोसा करो परमेश्वर Trust पे। in the Lord when my husband brings money in the house. और तभी भरोसा करना जब परमेश्वर पर तभी भरोसा करना जब पति घर में पैसा लाए। Is it? ऐसा ही है? What is the trust? क्या है भरोसा? What is the trust? भरोसा क्या है? Answer देना है। उत्तर दीजिए। वही क्या है भरोसा? भरोसा क्या है? What is trust? We have to trust. What is trust? हमें भरोसा करना है, पर भरोसा क्या है? कि जो मैंने परमेश्वर को मांगा वो हो जाएगा, होगा, हो गया। होगा, हो गया। The trust is when we put action on our faith. भरोसा वो है जब हमारे विश्वास के ऊपर हम कार्य को लाते हैं, उसे भरोसा कहते हैं। Understood? समझा? Everyone we are having faith. हम सभी के पास विश्वास है। Do you have faith? आपके पास विश्वास है? Yes. How much? कितना है?
How much faith you have? कितना है? Tell me how much faith you have. She's saying that we can't measure it. You can't measure. Okay. So when we have faith, जब हमारे पास विश्वास होता है, we have to put that faith in action. हमें उस विश्वास को कार्य में लाना है. It is called trust. उसे भरोसा कहते हैं. Understood what is trust? पता चला क्या है भरोसा? What we are doing every time we say we have faith. हम क्या करते हैं? हमेशा देखते हैं कि हमारे पास विश्वास तो है. We say we have trust in the Lord. हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं. But if we don't have actions, पर अगर उसमें कार्य नहीं होगा, that trust and faith will not work. और जो विश्वास में जो कार्य करते हैं वो काम पूरा नहीं होगा. So many we have faith. और हम सभी के पास विश्वास है. How faith will come? कैसे विश्वास आएगा? How faith will come? You have to know फटाफट. You have to tell the answer. फटाफट आंसर देने का. वचन पढ़ने से। वचन पढ़ने से एक ही बहन को आते हैं. Faith वचन पढ़ने से आते हैं. और other people बाकी लोग ऐसे नहीं आते. हाँ, वो faith का action है. That is action of faith. The faith comes when hearing the word again and again. वो तो उन बहन ने जो कहा वो विश्वास में कार्य को लाना है. बट बाइबल बताती है कि बार बार वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है. When Job was in the problem, जब अय्यूब समस्या में था, what he does? क्या किया उसने? What his wife told? उनकी पत्नी ने क्या कहा? श्राप न करो. Curse him and you die. श्राप दो और तू मर जा. Did Job heard his wife? क्या अय्यूब ने अपनी पत्नी का बात सुना? So many times we will trust, we will hear. If you see in the Bible, what you did. और बहुत बार हम लोग विश्वास में देखते हैं कि बाइबल यहाँ पर क्या कहता है, क्या करता है? Eve what did? अय्यूब ने क्या किया? Eve. हव्वा ने क्या किया? Okay, Adam ने क्या किया? आदम ने क्या किया? Who heard the voice? किसने आवाज सुनी? Who heard the voice? किसने आवाज सुनी? And he trusted whom? और उसने किस पर भरोसा रखा? जल्दी जल्दी बोलने का. हवा का मतलब Adam heard Eve. That means he trusted Eve. What happened? आदम ने हव्वा पे भरोसा किया और क्या हुआ? पाप में गिरा. But when Job trusted whom? अय्यूब ने किस पर विश्वास भरोसा रखा? He not heard his. He not listened his wife. उसने अपनी पत्नी का नहीं सुना. When we see Ananias and Sapphira, Ananias heard whom? हनन्याह ने किसका सुना? When we put trust in the Lord, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, we will prosper in our life. हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं. If we trust in man, अगर हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, whoever it is, a wife, husband, whoever, कोई भी क्यों ना हो, पति हो या पत्नी हो, we will be cursed. हम श्रापित होंगे. The Adam and Ananias, हनन्याह, they died in the sin. वो मर गए पाप में. But Job, what happened in his life? अय्यूब का क्या हुआ उसके जीवन में? He trusted God completely. उसने परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया. Then what he received? तो क्या पाप प्राप्त किया उसने? How much he received? कितना प्राप्त किया? दुगुना. He received दुगना. double. उसने दुगना पाया. So what your word says? यहाँ पर वचन क्या कहता है? We have to trust in the Lord. हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है completely. पूरी तरह से. We have to trust in the Lord. हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है with the whole heart. पूरे हृदय से. What Daniel did? डैनियल ने क्या किया?
क्या रखा? When the king told, जब राजा ने कहा, whoever praying to other god except king, जो कोई दूसरे परमेश्वर को आराधना करता है राजा को छोड़कर, they will put in the lion's den. वो सिंह के गुफा में डाला जाएगा। Daniel knew this. डैनियल को ये बात पता था। The word says, बाइबल बताती है, as it is Daniel went his house, जैसे ही डैनियल अपने घर गया, he kept the windows open, वो अपने खिड़कियों को खुला रखा and he started to pray. और वो प्रार्थना करने लगा। If we heard this, what we'll do? If we heard, अगर हम ऐसे सुनेंगे तो हम क्या करेंगे? now the prime minister, whoever is telling you, if you pray to Jesus, we will kill you. What you will do? अगर अब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ऐसे कि तुम यीशु की प्रार्थना करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, तो आप क्या करोगे बताओ? How you will pray? आप कैसे प्रार्थना करोगे? You'll keep the door open. दरवाजा खुला रखोगे? रखोगे और नहीं? नहीं रखोगे. But here what Daniel did? यहाँ पर डैनियल ने क्या किया? How he trusted God? उसने परमेश्वर पे कैसा भरोसा रखा? He trusted God with a full heart. उसे पूरे हृदय से भरोसा रखा। When trust will come, कब भरोसा आएगा? we have to know who God is. हमें ये पता करना है कि परमेश्वर कौन है। Because we are failed in our life, और हम अपने जीवन में पूरी तरह से थक चुके हैं to trust God in whole heart, पूरे हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए, because we do not know who God is. क्योंकि हमें यही पता नहीं कि परमेश्वर है कौन। Who is God? कौन है परमेश्वर? Who is God? परमेश्वर कौन है? You have to know who is God. आपको पता होना चाहिए परमेश्वर कौन है। Is he man? क्या वो मनुष्य है? Something you have to tell. Who is God? कुछ तो बोलो, परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा है और सृष्टिकर्ता है. He is a creator. वो रचना करता है। How he created to us? उसने हमें कैसे रचा? He created with mud. उसने कैसे बनाया? मिट्टी से। Can we do in the mud? Can we do something to life? हम मिट्टी से कुछ बना सकते हैं जो जिंदा हो सके? कोई बनाया? आज तक कोई बनाया? आज तक कोई? Can anyone did God with the mud? किसी ने Created man with the mud. किसी ने मनुष्य को बनाया क्या मिट्टी से? So that is the God. वो परमेश्वर है। कोई परमेश्वर बनाया भी नहीं ऐसे मनुष्य को, ऐसा हमारा परमेश्वर है जिसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया। The mud is nothing, right? मिट्टी तो कुछ भी नहीं है। What God did? परमेश्वर ने क्या किया? He put His life inside us. उसने अपना जीवन हमारे अंदर डाला। What He put? क्या डाला उसने? His life, His breath. उस परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सांस। The word says, वचन कहता है, God thought, परमेश्वर ने सोचा, I will create man मैं मनुष्य को बनाऊंगा like me, मेरे जैसा like बनाऊंगा, my image. मेरे स्वरूप में। When He created us, जब परमेश्वर ने हमें बनाया, He put His breath, His life in us. और उसने अपना जीवन हमारे अंदर दिया। Now who is inside us? तो हमारे अंदर कौन है? God is inside us. परमेश्वर हमारे अंदर है। So what we have to do? तो हमें क्या करना है? God is only with the Christian, means who believe Jesus, or with everyone? क्या परमेश्वर सिर्फ क्रिश्चियन के ही है कि सबका है? God is with everyone, but when He will work, परमेश्वर सबके साथ है, पर वो कब काम करेगा? आवाज देंगे. The word says, वचन कहता है,
Now why I want to tell, because when I said the Lord put His breath inside us, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जब उनका सांस हमारे अंदर डाला तो, because everyone say, every people who born on this earth, जो कोई भी इस धरती पर जन्म लिए, they everyone having the breath of God. सभी के पास परमेश्वर का सांस है. But when that spirit will work inside us, कब वो आत्मा हमारे अंदर काम करेगा? when we believe in Jesus. तब जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे. When we believe in Jesus, जब हम यीशु पे विश्वास करेंगे He is God, कि वो परमेश्वर है, then the Spirit is working inside us. तब आत्मा जो है हमारे अंदर काम करता है. So here everyone is believing Jesus, right? तो यहाँ पर सभी लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, सही है? So the Spirit of God is inside us. परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, Means God Himself inside us. यानी स्वयं परमेश्वर हमारे अंदर है. Amen. Amen. Understood? समझा? So what we have to do? तो क्या करना है? That the Spirit inside us, जो आत्मा हमारे अंदर है, to become alive, जिंदा होने के लिए we have to feed Him. उसे खिलाना पड़ेगा. How we are feeding our body, right? हम अपने शरीर को कैसे खिलाते हैं? How many times we are eating food? कितने टाइम आप खाते हो खाना? कितने बार? जल्दी बोलना है. Not today and yesterday. Forget today and yesterday. आज का और कल का छोड़ दो, भूल जाओ. Otherwise, how many times you are eating the food? नहीं तो कितने बार खाते हो? 3 times plus chai, snacks. That means every 3 hours at least we are having food for our body. हमारे शरीर के लिए कम से कम हम 3 बार खाते हैं और फिर उसमें स्नैक्स, चाय, Do you agree with समोसा, me? ढोकला सब. So बिना छोड़ के हम लोग खाते हैं. बिना छोड़ के हम लोग खाते हैं खाना. अच्छा, चूकता नहीं है खाना, चूकता नहीं है, खाते पक्का है. हाँ. And no need to tell anyone, no need to remind us. और किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, Because we want to live on this body, on this earth, क्योंकि हमें इस धरती पर रहना है with this body. ये शरीर को लेकर. But who is inside us? पर हमारे अंदर कौन है? और एक person है. One more person is inside. और एक व्यक्ति है अंदर. कौन है? So how we have to feed him? तो कैसे हमें उसको खिलाना है? वचन से. So is it important to read the word? तो क्या ये सही है परमेश्वर का वचन? How many times? कितने बार? How many times? कितने बार? You have to answer me fast. How आपको many जवाब times? देना है जल्दी. How many times you have to eat the food? At least 3 times. 3 टाइम खाना है. But the word of God, how many times you have to read? वचन कितने बार पढ़ना है? What Joshua 1:8 says? यहोशुआ 1:8 क्या कहता है? हाँ बराबर. हाँ, बोलो. बोलो. व्यवस्था की यह पुस्तक मेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इस पर तू रात दिन ध्यान दे नहीं, रहना. एक आदमी बोलेगा तो अच्छा है. हाँ इस बोलो. पर तू रात दिन ध्यान दे रहना. ऐसा करने से तू प्रभावशाली रात दिन ध्यान दे रहना. वो किधर होना चाहिए? The word should be on in the Bible inside the book and Bible inside the cupboard. बाइबल It किधर is रहना not चाहिए? written like that in your कपट Bible. में. क्या लिखा है तुम लोगों का बाइबल में? Where we have to have the word? वचन कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? बाइबल में पैक करके अंदर रखना है, कपट में. कपट में. Like that. The word always, it is on a lips, on a mouth. इसीलिए वचन हमेशा हमारे होठों पर होना चाहिए. The word clearly says, वचन साफ रीति से कहता है. word always in our mouth. वचन हमेशा हमारे मुंह में होना चाहिए. We have to meditate in day and night. उसे
मनन करना है, then only you will prosper and success. तभी तुम कामयाब होगे और प्रभावशाली होगे। Amen. Amen. Today if you are thinking, maybe if I ask you, no one will tell, no, I did not receive the blessing, I have everything, but you know how everyone is here where you are failed in our life, in your life. अगर आप यहाँ पर हो और कहते हो कि मुझे सब कुछ मिला, आशीष मिला है और आशीष नहीं मिला है पर मेरे पास सब कुछ है, तो आपको पता है कि आप कहाँ पर चूक रहे हो। So the simple answer is, तो एक आसान जवाब ये है, because you are not reading, and even if you are reading, you are not meditating. आप उत्तर ये है कि आप पढ़ते नहीं हो, अगर पढ़ते भी होंगे पर उस पर मनन नहीं करते। If you meditate on your word, अगर आप मनन करोगे वचनों पर, you will trust the Lord. तो आप भरोसा करोगे परमेश्वर पे। Because to trust God, परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए it is only one way. You have to know the word. सिर्फ एक ही एक रास्ता है कि आप परमेश्वर को वचन को जानो। When you know the word, जब आप वचन को जानोगे, you know who God is. तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कौन है। If you read in book of 1 Chronicles chapter 4, अगर पहला इतिहास में अगर आप देखोगे 4 अध्याय में, if you read from 9 से पढ़ेंगे तो there is one man called Jabez. जाबेस करके एक मनुष्य है। Jabez was more honorable than his brothers. उनके भाई से भी ज्यादा वो आदर पात्र था। या Jabez was more honorable than his brothers. His mother, 4 अध्याय उसका 9वां वचन, his mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him pain. Jabez cried out to the God of Israel, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. One minute, sister. So here, one man called Jabez. यहाँ पर एक मनुष्य है याबेस करके। How many have heard about him? कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? How many have heard about Jabez here? याबेस के बारे में कितने लोगों ने सुना यहाँ पे? The Jabez means याबेस मतलब the man is full of pain. मनुष्य जो पूरे दर्द से भरा हुआ, A man full of sorrow. एक पूरे दुख से भरा हुआ, A man who is cursed. और ऐसा मनुष्य जो श्राप से भरा हुआ है, Is the meaning of his name. उसके नाम का यही मतलब है। Whenever in Jews time, यहूदियों के समय they keep the name according what is their life. वो ऐसे ही नाम रखते थे, उनका जो जीवन है उसको लेकर वो लोग नाम रखते थे। The mother of Jabez, याबेस की माँ, she kept his name Jabez because उनकी माँ ने उनका नाम याबेस इसीलिए रखा क्योंकि their word says, वचन कहता है, I gave birth to him in pain. मैंने उसे जन्म दिया दर्द में। Here in this word, यहाँ पर इस वचन में कहते हैं, there is no explanation what is pain in her. ये दर्द कौन सा है वो नहीं बताया है। Maybe she is having so much pain. Maybe she don't have maybe money, or her body is not helping her. We don't know because there is no clear written which type of pain she had. बाइबल में इतनी साफ रीति से नहीं बताया कि याबेस की माता को किस बात का पीड़ा था, या उसके शरीर का पीड़ा था, या पैसा नहीं था, परिस्थिति गंभीर थी, पता नहीं, पर बाइबल में वो सब बताया नहीं है। If she kept that name Jabez, अगर उसने वो नाम रखा है याबेस, was full of pain, पूरे दर्द से, that maybe she went through the great pain. हो सकता है कि वो बहुत पीड़ा को सही हो, Because no one will keep their children the name like that. क्योंकि कोई अपने बच्चे का नाम ऐसा नहीं रख सकते। So when Jabez is going anyone to meet, और याबेस किसी से भी मिलने जाता तो no one will like him. कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। They will think, वो सोचेंगे is a man full of sorrow. कि ये मनुष्य पूरे दुख से भरा हुआ, If he come close to me, अगर वो मेरे पास भी आएगा तो I will also have that sorrow. मुझे भी वो दुख मिल
जाएगा। This man is full of curse, ये तो श्राप से भरा हुआ है and that curse will come to me. और वो श्राप भी मेरे पास आ So जाएगा। everyone was सभी लोग जो है rejecting him. नकारते थे उसे, But here, परंतु यहाँ पर Jabez not kept quiet. याबेस चुप नहीं रहा। What we will do, वो क्या करता था? what we will do, हम क्या करते थे? we would become depression. हम और सदमे में जाते। We would go and think to suicide. हम सोच सोच कर आत्महत्या करने चले जाते। We will grumble and will complain. हम कुड़कुड़ाते हुए शिकायत करते Why this mother gave birth to me? कि ये माँ ने क्यों मुझे जन्म दिया? I would died in mother's womb only. मैं माँ के गर्भ में ही मर जाता। Is it right? क्या Do ये you- सही है? Do you heard or do you thought in your life like this? आपने सोचा कभी ऐसा? आपके जीवन में भी आपने कभी ऐसा सोचा? When problems come, did you thought like that? समस्या आने पर कभी आपने ऐसा सोचा? Everyone will go through like this. सभी लोग ऐसे ही जाएंगे। When some problems come, कुछ समस्या आती है तो, if everyone was not accepting us, और सभी लोग अपने को पास नहीं लेते तो so we will think, why I born? आप सोचोगे कि मैं क्यों पैदा हुआ। So we will curse everyone तो हम सभी को श्राप देना शुरू करते हैं, because many are coming to us. क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आते हैं। We heard these words from these people. हमने ये वचन सुना लोगों से। But what Jabez did here? याबेस ने क्या किया? He understood who is God. वो समझ गया कि परमेश्वर कौन है। He not blamed anyone उसे किसी को निंदा नहीं किया, because he knew क्योंकि उसे पता था who is creator, कि रचनाकार कौन है। the God of Israel, इजराइल का परमेश्वर, who fed 40 years for people of Israel. 40 fed. और जो इजराइल के लिए वो नहीं सा ऐसा था 40 साल के लिए। Who fed किसने खिलाया इजराइल को? 40 years. 40 साल किसने खिलाया? Who opened the Red Sea. किसने लाल समुद्र को खोला? So the Jabez knew this. तो याबेस को ये बात पता थी। He knew who is God. उसे ये पता था कि परमेश्वर कौन है। He knew how the Israel when the Jericho wall. आपको पता है कि इजरायली लोग और वो यरीहो की दीवार। So he thought, I know who is my God. तो तुरंत याबेस ये सोचने लगा कि मुझे पता है मेरा परमेश्वर कौन है। I no need to remain in this pain. मुझे इस पीड़ा में रहने की कोई भी जरूरत नहीं So है। there the prayer of Jabez we can see. तो यहाँ पर याबेस की प्रार्थना हम देख सकते हैं। See how he is praying to God. देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर Jabez से। cried out to God of Israel. याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा। Oh that you would bless me. आप Read sister. No, read like that. You would bless me आप मुझे आशीष करोगे and enlarge my territory. और मेरे देश को बढ़ाओगे। Let your hand be with me आपका हाथ मुझ पर रहे and keep me from harm, और मुझे बुराई से बचा, so that I will be free from pain. ताकि मैं पीड़ा से बच जाऊं। And the word says God granted his request. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी बात सुन ली। Heard his prayer. Do you heard how he prayed? आपने सुना कैसे प्रार्थना किया? Did he requested God? क्या उसने विनती की परमेश्वर से? Can he ask question? Can you do for me? क्या आप सवाल कर सकते हो परमेश्वर के, परमेश्वर आप मेरे लिए कर सकते हो क्या? He said, God, you can bless me and you can enlarge my territory. उसने कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता। Because he trusted God completely. क्योंकि उसने पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखा। So when we say we are trusting, we will trust God. जब हम कहते हैं कि हम भरोसा रखे हैं, but we don't know who is God. पर हमें यही पता नहीं कि हमारा परमेश्वर कौन है। That is why we have to read the word. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। That is the word says the faith will come hearing the word. इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास तो आएगा परमेश्वर के वचन को सुनने से।
कौन सा word? कौन सा वचन? Which word we have to hear? कौन सा वचन सुनना है? We have to read every time how Israel people came out from the slavery. आपको ये वचन पढ़ना है हमेशा कि इजरायली लोग कैसे दासत्व से में बाहर आए, How God opened the Red Sea. कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। That is a verses we have to meditate on it. ऐसे ही वचन है जिस पर हमें मनन करना चाहिए। Is it easy to open the Red Sea? क्या ये आसान है लाल समुद्र को खोलने के लिए? How is the sea? How much big it is? समुद्र कैसा होता है, कितना बड़ा होता है? Is anyone measured it? किसी ने नापा है उसे? Anyone knows it? किसी को भी पता है What is the depth of the sea? इसकी गहराई क्या है समुद्र की? No one go to school here. कोई स्कूल नहीं जाता यहाँ पर? The anyone is brilliant to measure the depth of the sea? कोई है ऐसा होशियार जो समुद्र को नापे? At least you heard from anyone. किसी से सुना क्या आप लोग ने? So when we see the word, 1002. how many? 1002 of Indian Ocean. So whatever he knows, he is telling. जितना उसको पता है वो बता रहा है। So children are always बच्चे जो हमेशा teaching us. हमें सिखाते रहते हैं, So that is, we have to become like the children. इसलिए हमें भी बच्चे जैसा बनना है। We have to answer for question. आपको सवालों का जवाब देना है, If it's wrong or right. सही हो या गलत हो तो भी चलेगा। So that is why we have to meditate on the word. तो इसीलिए हमें क्यों मनन करना We है? are easily reading like a story. क्या आप कहानी की तरह पढ़ते हो? Because many are that also they don't believe. क्योंकि बहुत से लोग वो भी नहीं विश्वास करते। Oh, that is a magic for on that time. Just they cross the road, the sea. वो सब तो पहले की बात है, वो तो जादू है। There is little water was there. They not walked on dry ground. वो थोड़ा सा पानी था, वो सूखे जमीन पर नहीं चले। We have to think. We have to meditate how that sea can dry on that time. हमें सोचना है, मनन करना है उस बात पे कि उस समय कैसे वो जमीन सूखी हो गई, दो भाग हो गया पानी। And how many lakhs people were there? कितने लाख लोग थे? How many lakh? कितने लाख? 6 lakh means now here. How many people are here? 6 लाख, मतलब अभी कितने लोग हैं यहाँ पर? How many people are here? At least 200. अभी कितने लोग हैं? 200 तो होंगे। To cross just the road for 200 people, how many hours you need? रोड को क्रॉस करने के लिए 200 लोग अगर क्रॉस करे, उस पार जाए तो कितना मिनट लगेगा? You think 6 lakh people crossing the sea. तो सोचो 6 लाख लोग लाल समुद्र को पार कर रहे, How it will be? कैसा होगा वो नजारा? We have to meditate like that. हमें ऐसे सोचना है, ऐसे मनन करना है। The word says, वचन कहता है when the people of Israel, इजराइल के लोग when they are going when they are going to from Egypt to Canaan, और मिस्र से कनान में जब जा रहे थे, in that 40 years, उस 40 साल में their clothes are growing. Clothes, कपड़े, ग्रोइंग, growing. उनके कपड़े बढ़ रहे थे। मतलब because what is if the 5 years child he started journey from Egypt. यस, अभी जब समझो बच्चा जो है उसने शुरुआत कर दिया जाने का उस दूसरे देश में। When he reached Canaan, he is a 45 years old man. तो अभी कनान में पहुंचने तक वो 45 साल का तो हो गया होगा। So when he was moving, जब वो चल ही रहा था, his clothes also growing. उनके कपड़े भी बढ़ रहे थे। That is not my word, it is in the Deuteronomy chapter. ये मेरे शब्द नहीं है, व्यवस्था विवरण में लिखे हैं। You want to know that? आपको जानना है ये बात? Chapter 8. 8वां अध्याय, व्यवस्था विवरण। I'll just
See sister number 6. See the 6. About it? Read 6 and 8, 7, 8. Yes, what is written? इसीलिए मैं व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय उसका 6 से पढ़ रही हूँ। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। Okay. This is Deuteronomy 29:5. 29 क्षमा करें, व्यवस्था विवरण 29 उसका 5 पढ़ेंगे। Read that in English. Give me now. मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न ही तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। The word says, Deuteronomy 29:6. You ate, from 5. Yet the Lord says, during the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals on your feet. Read in Hindi, sister. Yes. व्यवस्था विवरण 29 उसका 5। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। You heard it? सुना आप लोगों ने? What God made every day, it was new. क्या किया परमेश्वर ने? हर दिन वो नया होता गया। So this is our God. तो ये है हमारा परमेश्वर। Who wrote this Proverbs book? नीति वचन किसने लिखा है? Who wrote? किसने लिखा है? Solomon. सुलेमान ने लिखा है। You know what he asked from God? आपको पता है उन्होंने परमेश्वर से क्या मांगा? He asked wisdom. उन्होंने बुद्धि को मांगा। So how we will receive the wisdom? हमें कैसे प्राप्त होगा बुद्धि? यहोवा का, when you fear the Lord, जब आप यहोवा का भय मानोगे, we will receive the wisdom. तब हम बुद्धि को प्राप्त When करेंगे। we read the word, जब हम वचन को पढ़ेंगे, we will receive the wisdom. तब ही हमें बुद्धि प्राप्त होगी। Why we need wisdom? क्यों हमें बुद्धि चाहिए? To know who God is. ताकि जाने परमेश्वर कौन है। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हो? The backside people are here or not? पीछे के लोग आप लोग हैं? Are you there? आप हो यहाँ पर? No, why I'm telling this? मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि we say we are praying. हम कहते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। We have faith. हमें विश्वास है। We trust God. हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। But nothing is happening in our life. पर कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। So that is why I'm explaining. इसीलिए मैं इसे ज्यादा विस्तार में बता रही हूँ। How we trust in the God full heart. किस तरह से हमें अपने परमेश्वर को पूरे हृदय से भरोसा करना है। The way is only one. सिर्फ एक ही रास्ता है। We have to meditate on the word. हमें परमेश्वर के वचनों को मनन करना है। When we meditating on the word, जब हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं, first we have to know who is God. पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर कौन है। You have to think how beautiful is creation. आपको ये सोचना है कि कितने सुंदर उसने रचना की है सृष्टि। Even if you are going to your prayer room, अगर आप प्रार्थना के कमरे में भी आप जाते हो आपके, you no need to do other prayer. आपको दूसरी प्रार्थना करने की जरूरत भी नहीं है। You just think how God made everything. आप सिर्फ सोचो वहाँ बैठकर कि किस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। Think about the flowers. फूलों के बारे में सोचो। Think about the birds. पक्षियों के बारे में सोचो। How many colors are there? कितने रंग हैं? How many numbers are there? कितने अंक हैं?
How many oceans are there? कितने महासागर हैं? So when you think about this, अगर आप इसके बारे में सोचोगे, then you know who God is. तब आप सोचोगे कि क्या परमेश्वर है, कौन Then है? you will praise God. तब आप परमेश्वर की स्तुति You करोगे। will praise or not? आप स्तुति करोगे कि नहीं करोगे? If you see the beautiful flower, what do you think? आप अगर सुंदर फूल को देखोगे तो क्या सोचोगे आप? Oh, how God made it. वो कैसे परमेश्वर ने बनाया How इसे? beautiful it is. कितना सुंदर है ये। So that is the prayer. तो ये है प्रार्थना, That is the praising God is prayer. और परमेश्वर की स्तुति करना ही एक प्रार्थना है। So that is why इसीलिए trusting in the Lord, the full heart means परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना अपने हृदय से, मतलब we have to know who God is. हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है। How Jabez prayed. याबेस ने कैसे प्रार्थना की? You heard it, right? How Jabez prayed. आपने सुना ना कैसे प्रार्थना की? So when we pray like this, we have to forget our situation. हमें ऐसी प्रार्थना करना है, हमारे परिस्थिति को भूल जाना We है। have to forget who we are. हमें ये भी भूल जाना चाहिए कि हम कौन हैं। We have to know someone is there, the Creator who will bless us. आपको ये सोचना है कि कोई तो है रचनाकार जो हमें आशीष करेगा। Then only we can see blessing in our life. तभी हम अपने जीवन में आशीष को देख सकते हैं। नींद आती है क्या? नींद, आर यू स्लीपिंग? ना। आदमी लोग नींद आते हैं? भूख लग रहा है? भाई लोगों को नींद आ रहा है, भूख लग रहा है। You are learning something? कुछ सीख रहे हो आप लोग? So tomorrow is a test. कल आपकी परीक्षा होगी। So tomorrow again we'll have the meetings till morning 9 to evening 5 here only. तो यहाँ पर कल ऐसी सभा होगी सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक। और 2 टेस्ट करेंगे। 2 टेस्ट विल बी देयर। Are you ready? तैयार हो? कोई नहीं आएगा, बोलेगा मेरे को और एक चर्च जाना है। Okay, we'll continue, we'll read. हम लगातार उसे पढ़ेंगे। 7 and 8. 7 और 8 नीति वचन। Proverbs 7 and 8. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. 7 और 8 पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय उसका 7 और 8। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। बच्चे लोगों को थोड़ा कि उसका साउंड इधर सुनते और इधर रिकॉर्डिंग होते। You heard it? क्या आपने सुना? Do not wise be in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। Then what will happen? फिर क्या होगा? This will bring health to our body तो ये हमारे शरीर को भला चंगा करेगा and nourishment to your bones. और हड्डियों को पुष्ट करेगा। How will receive the good health? हमें अच्छी सेहत कैसे मिलेगी? क्या करना होगा? What we have to do? Yesterday I gave 2 things. कल मैंने 2 चीजें दी है। क्या है? What I told yesterday, what we have to do? क्या करना है? Time. We have to spend a time with Lord reading the Word. परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए। Our second one, what I told. Second one, not from the Bible I told. बाइबल से नहीं बोला। दूसरी बात क्या है? Shut our mouth. मुंह I told- अपना मुंह बंद रखो। अब स्वभाव को बदलना है, but the second, how स्वभाव बदल सकते? कैसे हम स्वभाव को बदल सकते हैं? क्या बोला था? मुंह को बंद करना है, वो उसको सुना है। सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा होना चाहिए। So ladies forgot because they cannot control their tongue. This is an example. स्त्रियां
कल क्या सीखा है वो भूल गए, क्योंकि वो अपने जबान पर नियंत्रण नहीं रख सकते। So, because why? We are doing many sins through our tongue. क्यों? क्योंकि हम अपने जबान से बहुत सारे पाप कर देते हैं। If I check your mobile, अगर मैं आपके मोबाइल चेक करूं, after going from here yesterday, यहाँ से जाने के बाद, if I check your call history, अगर मैं आपका कॉल का इतिहास देखूं तो how long you spoke in the phone? कितने घंटों आपने बात किए। हंसेगा तो मालूम पड़ता है हम लोग कितना बात किया। It is not only in the phone, but we will speak and speak and speak and waste our time. ये सिर्फ फोन की बातें नहीं है, ऐसे भी हम लोग सिर्फ बातें 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 करते रहते हैं। The word says, वचन कहता we है have to give account of every word. आपको हर एक शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। If you want the good health, अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो simple is, आसान ये है, we have to go away from evil. हमें बुराई से दूर भागना है बस। We have to hate evil thing. हमें बुराई से नफरत करना है, बुरी चीजों से। Which is the evil? कौन सी बुरी बात है? Which is, there are many things which is causing to you sin, or which is causing to go away from God. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें पाप में गिरा सकती है, या ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकती है। These all evil, when you go away from the evil, ये सारी बुराई, जब आप बुराई से दूर जाओगे, you will have good health. तब आपके पास अच्छी सेहत होगी। Your bones are strong, word of God says. आपकी हड्डियां जो है वो मजबूत रहेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। I can't explain what all the evil, because everyone knows what all the evil. मैं तो विस्तार में नहीं बता सकती कि क्या क्या वो बुराइयां हैं, बट आप सबको पता है कि कौन सी बुराइयां हैं। Because if I explain that evil, अगर मैं आपको बताने लगूं ये सारी बुराइयां, then evil come inside us. तो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी। So that is why, my dear brothers and sisters, इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, we have to trust in the Lord. पहले हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। That second, we have to shun the evil. और बुराई को दूर करना है। We have to fear the Lord. हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, भय मानना है। Now we are going the chapter 3 verse 9 and 10. अभी हम नीति वचन 3 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। Here the verse says, यहाँ पर वचन कहता है, honor the Lord with your wealth, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज परमेश्वर यहोवा को प्रतिष्ठा करना। with the fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will be brimmed over with new wine. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडे से नए दाख मधु उमड़ता रहेगा। So again read chapter 9 verse. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। This is the third one. ये तीसरी बात है। क्या बात है तीसरी? What we have to do? क्या करना है? We have to honor. हमें परमेश्वर का आदर करना है। How to honor God? कैसे आदर करना है? What here word says? यह वचन क्या कहता है? We will honor God with the attitudes, with the nature, with the time. हम परमेश्वर का आदर करेंगे हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से और हमारे समय से भी। These all things bring prosperity in our life. ये सारी बातें हमारे जीवन में समृद्धि को लाता है। The last one thing, honor the Lord with your wealth. और यहाँ पर आखिर में लिखा है कि अपनी भूमि की सारी उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। The previous two things we can do easily. तो ये जो
पिछली जो 2 बातें हैं वो हम आराम से कर लेंगे, but when it comes this year, the third thing, पर ये तीसरी बात में जब आते हैं तो it is very difficult to do us. पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है करना। Why today man is filled with poverty? आज क्यों मनुष्य गरीबी से भरे हुए हैं? The reason is this 9 and 10. उसका कारण ये है 9 और 10। We don't want to honor God with our wealth. हम अपने धन संपत्ति से परमेश्वर का आदर नहीं करना चाहते। I want to ask some questions. मुझे कुछ सवाल पूछना है आपसे। How many are here from the same church? कितने लोग इसी कलीसिया के हो? सिस्टर Pastor. आपको पूछ रहे हैं कि इस कलीसिया से कौन कौन है? मतलब तुम्हारा पास्टर सैमुअल है। आपका पास्टर सैमुअल है। कितने लोगों का? कितना लोग है? आपका पास्टर सैमुअल है। और बाहर का कितना लोग है? हाथ उठाओ। बाकी सब हाथ नीचे रखे। और बाहर के मतलब कौन है? मतलब दूसरे पास्टर है आपके? 1 4 5 6 जन है। 6 जन। ऑलमोस्ट 6-7 जन है। Okay, 6 7. There is 2 people. Okay. No problem. No, I just want to know how many are from this church. सिर्फ मुझे इतना ही जानना है कि कितने लोग इसी कलीसिया से हैं। Who are belong to this Pastor Samuel. जो पास्टर सैमुअल के जरिए हैं। Can you put hands once again? फिर से एक बार हाथ ऊपर कर सकते हो। So, can we click one photo, please? एक फोटो निकालेंगे यश? निकाल सकते हैं? निकालो। नहीं, I will ask them. निकालो। Can we click one photo? फोटो निकालेंगे? ऐसे पूछ रहे हैं। Just one click one photo. एक कार्ड ना पापा। This side no problem. Just one click. इधर भी निकालो। इसका जरूरत नहीं। So okay, put your hands down. So how many are you working? कितने लोग यहाँ सॉरी कितने काम लोग पे काम जाते करते हैं? Wait, don't sit. Wait. कितना लोग काम पे जाते हैं? मतलब पगार लेके आते हैं घर में। पगार लेकर आते हैं। कितने लोग काम पे जाते हैं? कोई नहीं काम करते पीछे से। पीछे कोई भी काम पे नहीं जाते? हाउसवाइफ। बराबर हाथ ऊपर करना। अच्छे से करो। बहुत कम है काम करने वाले। What about your husbands? आपके पतियों का क्या? आपके पति लोग काम पे जाते हैं? ऐसे कुछ इधर नहीं आते पति। Your husband are not coming this church. They are not belong to this church. आपके पति लोग इस चर्च के नहीं हैं। Belong to this church. इसी They are चर्च- working, right? वो काम करते हैं ना? Yeah, means they are getting salary. यानी उन्हें पगार मिलता है। So like that, put hands. How many are there? तो वैसे लोग हाथ ऊपर करें जितने के पति लोग पगार लाते हैं, काम करते हैं। इतना ही रखो। आधा पति पूरा full पति। hands. और दूसरे लोग खाना नहीं खाते। The rest of people are not eating food. बाकी के लोग खाना नहीं खाते? खाना खाते ही नहीं खाते? और मतलब No, I'm not asking today or yesterday's. आज और कल की Every बात day. नहीं है। रोज खाना नहीं खाते क्या? जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको पूछ रहे। See, yesterday I told I came to change. देखो मैंने कल ही बोला था ये बात कि मैं बदलने आई हूँ। I'm very serious. मैं बहुत गंभीर हूँ। I'm not simply to make joke here. मैं यहाँ मस्ती मजाक करने नहीं आई हूँ। Because I don't want the poverty is increasing in our life. मैं ये नहीं चाहती कि हमारे जीवन में गरीबी बढ़ते जाए। Who we are? हम कौन है? Whose children we are? हम किसके बच्चे हैं? हाँ? राजा का बच्चे हैं। We are children of King of Kings. हम राजाओं के राजा के बच्चे हैं। और हम लोग कैसा होना चाहिए? How we should be? How Raja will sit? Where he is sitting? राजा कैसे बैठता है? किधर बैठता है? And his children where has to sit? On the floor? उनके बच्चे कहाँ बैठना चाहिए? जमीन पे? I'm not inciting you, but I want to
to tell you the practical thing. मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती हूँ, परंतु मैं इसे साफ रीति से आपको बताना चाहती हूँ। It is not now. I'm talking about your future. अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके भविष्य के बारे में बात कर रही हूँ। I'm okay. Your sitting down is not a problem. ठीक है, आप नीचे बैठे हो, इसकी कोई Or समस्या don't नहीं है। think sitting down is showing we are humble before God. और ये ऐसा नहीं, ये दिखावा नहीं है कि हम नीचे बैठे हैं तो हम दीन नम्र है परमेश्वर के सम्मुख में, ऐसा नहीं है। God will not see your position. परमेश्वर आपका जो स्थिति है, कहाँ बैठे, वो नहीं देखता। We are thinking we are the children of King of Kings. हम सोचते हैं कि हम बच्चे हैं राजाओं के राजा के, And King is sitting on the throne. राजा सिंहासन पर बैठा है And we are sitting on the floor. और हम जमीन पर बैठे हैं। Is it matching? क्या ये जुड़ रहा है बात? Is it matching? क्या ये बात जुड़ रहा है? Now you have to know that. Is आपको it पता होना matching? चाहिए ये। Because if you don't have that understanding, अगर आपके अंदर वो समझ नहीं है, we will never improve in our life. हम कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाएंगे। So you want to sit on the floor or you sit on the beautiful chair? आपको जमीन पर ही बैठना है कि सुंदर चेयर पे बैठना है, कुर्सी पर? If you are thinking your king is sitting on the throne and you want to sit on the floor, अगर आप सोचते हो कि आपका राजा सिंहासन पर बैठा है और हम जमीन पर बैठे हैं, why I'm telling you to know this understanding? मैं ये क्यों आपको कह रही हूँ कि ये सोच जो है कैसा भी नहीं चलता है. In Christian life, it is not anything is okay for us. मसीही जीवन में कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है ऐसा नहीं चलता। We have to be very serious. Who is our God? हमें बहुत गंभीर होना है कि हमारा परमेश्वर कौन है। Do you agree this? आप कबूल करते हैं इस बात को? सहमत हो? So why we are failed? Because we don't want to honor God with the wealth. तो हम क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हम अपने धन संपत्ति से परमेश्वर के आदर सम्मान नहीं करना चाहते। Okay, now I want to ask how many families are bringing tithes in this church? अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने परिवार, Put your hands कितने up. परिवार इस कलीसिया में दशमांश को लेकर आते हैं? Every month, how many are bringing your salary? Tithes. हर महीना Properly, put पूरी तरह properly. से, Because God will see your hands. हर महीना कितना परिवार दशमांश को लेकर आते हैं? Even who is going other church also. कोई दूसरे कलीसिया में जाते हैं फिर भी दशमांश यहाँ लेकर आते हैं, तो भी वो भी हाथ उठा सकते हैं। So this baby also brings. देखो बच्चा भी दशमांश लाता है। Your hands are very few. आपके हाथ बहुत कम है। So now you have to click one photo. आपके फोटो चाल लेकर हाथ ऊपर। So if you now compare the photo, पूरा हाथ ऊपर करें। उस फोटो जो पहला निकाले, see these all hands. Pastor Samuel will recognize it. पास्टर सैमुअल ये पूरा हाथ देखेंगे ध्यान से। Okay, put your hands down. हाथ नीचे रखें। Because we are not serious about to honor God through our wealth. तो हम अब देखते हैं कि हम परमेश्वर की आदर जो करते हैं वो धन संपत्ति से नहीं कर रहे। We need prayers. हमें प्रार्थना चाहिए। We need someone to take care of our soul. अब हमारी आत्मा का चिंता करने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए। We need someone to pray for us day and night. हमारे लिए कोई रात दिन प्रार्थना करने वाले चाहिए। But we don't want to honor them. पर हमें उनकी आदर करना नहीं चाहिए। There are many stories or the many evidence I can give you. ऐसे बहुत से कहानियां, बहुत से सबूत है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। If how they failed in their life without giving tithe. किस तरह से वे चूक गए, मतलब हार गए, Not only दशमांश बिना दिए। not only tithes, even many times we will vow to God, we will do this, then we'll forget immediately. और सिर्फ दशमांश भी नहीं, हम मन्नत भी मांगते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो भी भूल जाते हैं। So one day one lady, एक दिन एक स्त्री, she don't have children. उसे बच्चा नहीं था, She prayed to God. उससे प्रार्थना किया परमेश्वर से। She came to one servant वो एक सेवक के पास आई
And the servant prayed सेवक ने प्रार्थना किया and he prophesied over her, और उसने भविष्यवाणी की उसके ऊपर God want to give you child. कि परमेश्वर तुम्हें बच्चा देना चाहता है। So woman told, स्त्री ने कहा if I get child, कि मुझे अगर बच्चा मिला तो I will give मैं दूंगी some gunny bags of rice. कुछ पोते दूंगी मैं चावल के। It's costing 12,000. वो 12,000 उसका हिसाब किताब होगा। God blessed her child, परमेश्वर ने उसे संतान से आशीष किया, but later she forgot to give that 12,000 to God. पर वो उसके बाद भूल गई वो 12,000 परमेश्वर को देना। Now she is going to celebrate 1 year birthday. अभी वो 1 साल का जन्मदिन बनाने के लिए वो तैयारी था उनका। So she prepared the gold chain for baby. तो उन्होंने चेन बनाया सोने की बेबी बच्चे के लिए, And they come, they celebrated birthday. और वो आए जश्न मनाए जन्मदिन का। And evening the neighbor told, शाम को उस पड़ोसी ने कहा I'll just take your daughter to click photo with my children. मैं आपकी बेटी को लेती हूँ मेरे बच्चों के साथ फोटो निकालने के लिए। So this lady was busy with guests, और ये जो स्त्री थी वो मेहमानों के साथ व्यस्त थी, and she trust neighbors more than God. उसने पड़ोसी पर ज्यादा भरोसा किया परमेश्वर से भी। So she sent child with neighbor. हाँ, तो उसने अपने बच्चे को भेज दिया पड़ोसी के साथ। And night the child came back. और फिर वो रात को वो बच्ची वापस आई, She thinking now put her child to sleep. और उसने सोचा कि उनके बच्चे को वो सुलाएगी अभी। So before that give bath. अब मिलाने से पहले So she is changing her dress. और जब वो कपड़े बदल ही रही थी She checked baby's neck. तो उन्होंने बच्चे का गला चेक किया, There is no chain. तो वहां पर चेन नहीं मिला। How much she supposed to give to God? वो कितना देना चाहिए था बच्चे को, परमेश्वर को? So the chain cost us more than lakh. और वो चेन जो था वो लाख रुपए से भी बढ़कर था। So she came to again that same man of God. फिर वो उसी परमेश्वर के दास के पास आई, Because she remembered she not gave that 12,000 to man of God. तो उसे याद आया कि वो परमेश्वर के जन को वो 12,000 नहीं दिया, That is why I lost the chain. इसीलिए मैं वो चेन खो बैठी वो स्त्री। But the man of God said, तो परमेश्वर के दास ने कहा you no need to give not 12,000 अभी 12,000 देने की जरूरत नहीं है, because Lord already took 7 times more from you. पर परमेश्वर ने तुमसे 7 गुना ज्यादा ले लिया है। Do you understood? आपको अभी समझा? Whom we are giving the money? आप किसको पैसा देते हो? Whom we are giving tithes? किसको दशमांश देते हो? We can cheat man, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, but we cannot cheat God. हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। Many times what we are thinking, कई बार हम ऐसा सोचते हैं, why we have to give that man of God? क्यों हमें परमेश्वर के जन को देना है? He is having so much money. उसके पास बहुत पैसा है। Your tithes is not belong to man of God. तुम्हारा जो दशमांश है वो परमेश्वर के जन का नहीं है। Your offering is not belong to man of God. आपका जो दान है वो परमेश्वर के जन का नहीं है। If he called him faithfully, अगर परमेश्वर ने उन्हें विश्वास योग्य में बुलाया है, he know how to take care of him and his family. तो परमेश्वर ये भी जानता है कि वो उस परमेश्वर के जन का कैसा देखभाल करे, उसके परिवार का भी। In your money or in your tithe offerings, आपके दशमांश में और दान में no man of God will live. तुम्हारे दशमांश और दान के बलबूते कोई भी परमेश्वर का जन नहीं जीवित रहेगा। So never bring the thought in your mind, तो कभी भी अपने दिमाग में वो सोच ना लाए I am giving this money to the pastor. कि मैं ये पैसा पास्टर को दे रही हूँ। Do you understand what I am telling? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? God knows how to take. That is why people are not prospering. परमेश्वर जानता है कि किस तरह से लेना है, इसीलिए लोग समृद्धि प्राप्त नहीं करते। There is one more incident I want to tell. और एक ऐसी घटना है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। One brother got job. एक भाई को काम मिला After praying with man of God, और परमेश्वर के जन के साथ प्रार्थना करने के बाद God spoke to through that man of God. और परमेश्वर ने बात किया उस परमेश्वर के जन के द्वारा। God want to bless you the big job. परमेश्वर आपको बड़ा काम देना चाहता है। So according to his prophecy, और उनके भविष्यवाणी के द्वारा he received the job.
उन्होंने काम भी प्राप्त किया And he promised man of God, और उसने परमेश्वर के जन से वादा किया, whenever I get salary, जब जब मुझे पगार मिलेगा I will keep that salary every month, और वो पगार जो है मैं हर महीने रखूंगा, because he was in the abroad. क्योंकि वो बाहर देश में था। When I come with 1 year, और जब मैं 1 साल में जब आऊंगा, I bring entire tithe मैं पूरा दशमांश को लेकर आऊंगा and I honor God. और मैं परमेश्वर का आदर करूंगा। And this brother, और ये भाई, he did exactly according to his word. और उसे जैसे कहा था उन्होंने वैसे ही किया अपने वचनों के He kept अनुसार। every month his tithe. हर 1 महीने का दशमांश रखा। When he came India, जब वो भारत आए, he came to the prayer meeting वो प्रार्थना के सभा में आए with that tithe. वो दशमांश के साथ। Before entering the hall, और हॉल में आने से पहले ही he met some woman, और कुछ स्त्री को मिले, and this brother was so excited, और वो भाई जो था बहुत उत्साहित थे, and he's opened his mouth to this woman. और उस स्त्री के सामने अपना मुंह खोल दिया भाई ने। I came here because I want to honor God with tithe, और मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं परमेश्वर का आदर कर सकूं अपने दशमांश के द्वारा, with my entire 1 year salary. मेरे पूरे 1 साल के दशमांश को लेकर। And this woman told, और स्त्री ने कहा, what you are doing this in this way? अब क्या कर रहे हो इस तरीके से? Why you won't give that much big amount to this pastor? इतना बड़ा रकम देने की क्या जरूरत है इस पास्टर को? So the evil entered his mind. तो दुष्ट उसके दिमाग में आ गया। So he thought, तो उसने सोचा, what I will do, I'll give or not. तो क्या करूं, दूं या नहीं दूं? Now his mind is changed. अभी उसका दिमाग जो है सोच है बदल गया, He don't want to give. वो नहीं देना चाहता। But still he came to the man of God, फिर भी वो परमेश्वर के जन के पास आए and he told man of God, और कहा परमेश्वर के जन को, I brought my tithe, मैंने दशमांश को लाया है, but I don't feel like to give. पर मैं नहीं चाहता हूँ कि दूं। So man of God said, परमेश्वर के जन ने कहा, if you are not willing to give, अगर आपकी इच्छा नहीं है देने की, see the man of God had right to ask or take tithe from him, right? देखो परमेश्वर का जन का हक है पूछने के लिए और मांगने के लिए भी। But the man of God said, तो परमेश्वर के जन ने कहा, if you are not willing to give, अगर आप नहीं चाहते हो देना, there is no use you are giving. तो आप दोगे तो भी कुछ उसका फायदा नहीं है। Before offering your tithe, आपका दशमांश देने से पहले there is a time still now. और भी समय है। Think, pray and give. सोचो, प्रार्थना करो, फिर देना। But that brother, पर वो भाई, he said to man of God straight away, तो परमेश्वर के जन को सीधी रीति से कह दिया, no, my mind is not willing. नहीं नहीं नहीं, मेरा मन तो नहीं कह रहा है, इच्छा नहीं हो रही है। So this man of God तो ये परमेश्वर का जन said, okay, do what you want to do. उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो। So this brother took money back and went home. तो ये भाई ने पैसे लिए और घर चले गए। So next day, दूसरे दिन he was shaving his beard. वो दाढ़ी बना रहा था, Sudden the blade hit him. तो जो ब्लेड ऐसे कट गया, Because of that pain, और उस दर्द की वजह से he just shook his body. और उसके शरीर जो है वो हिल गया उस दर्द The से। back side there is a dining table. और पीछे जो डाइनिंग टेबल था, That his head is hit to the dining table and he fell down. और उसका सिर जो है वो डाइनिंग टेबल को लगकर वो नीचे गिरा। And the dining table hit and hit from floor. और जब वो डाइनिंग टेबल उसके सिर को लगकर जमीन पर गिरा, The blood started to flow. तो खून बहने लगा। And his mother took him to the doctor. और माँ ने डॉक्टर के पास लेकर गए। Doctor said, I can't do anything. डॉक्टर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, So much blood is gone. बहुत खून चला गया अभी। Now he will not become normal. अब ये सही रीति से नहीं रहेगा। They called the man of God. तो परमेश्वर के जन को बुलाया। So man of God told, परमेश्वर के जन ने कहा, instead of calling me, मुझे बुलाने के बजाय call that woman उस स्त्री को बुलाओ who told you not to honor God. जिसने आपको कहा कि परमेश्वर का आदर मत करो। Understood? अभी समझा आपको? After some time the call came from company also. और कंपनी से भी कॉल आया, They told you don't join back to the company. तुम फिर से काम पे मत आना। Do you understood what I am telling? आपको समझा क्या बोल रही मैं?
How many times we are thinking like this? बहुत बार, कितने बार हम लोग ऐसे सोचते हैं? How many times we are discussing about money, about tithes, offerings, about our neighbors, our friends who is with us? हमारे मित्रों से, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से कितने बार तो हम लोग बात करते हैं दान दशमांश के बारे में. And how many times we decided not to give? और कितने बार तो हम निर्णय भी लेते हैं नहीं देना है. How many times we spoke about the man of God, how they are dressing, how much they are spending, why we have to give money to them? कितने बार तो ऐसे सोचते हैं कि क्यों देना है, कितना अच्छा से वो कपड़े पहनते हैं, कितने अच्छे से तो रह रहे हैं. Is it true? क्या ये सही है? Did you felt any time like this? कभी आपको ऐसा लगा, सोच आया ऐसा? अभी नहीं बोल सकते हम लोग, बट सब लोग नहीं बोला ऐसा, कोई एक दो आवाज आ गया, लेकिन ऐसा होता है. It happens. There are many testimonies who went against the tithe. बहुत ऐसे गवाहियां है जो दशमांश के विरुद्ध में गए वो लोग. Some are giving tithes, कुछ तो दशमांश देते हैं, but not to their pastor. पर उनके पास्टर को नहीं. They're giving the tithes who is just, they're thinking some poor pastors are there. वो सोचते हैं कि कोई जो गरीब पास्टर है ना, My pastor is no need money. मेरे पास्टर को पैसे की जरूरत नहीं है. See, that church is, that pastor is very poor. देखो वो कलीसिया के पास्टर जो है वो बहुत गरीब है. I want to give him. मुझे उसे देना है. Who is praying for you? कौन आपके लिए प्रार्थना करता है? खाना इधर खाते, बिल और एक होटल में पे करते. चलते है ऐसा? You are eating here in this hotel, paying money to the neighbor hotel. खाना इस होटल में खाना है और बिल दूसरे होटल में पे करना है. चलेगा ऐसा? Do you understand what I am speaking? आपको समझ में मैं क्या बोलना चाहती हूँ? So that is why. इसीलिए. And some are there. और कुछ ऐसे हैं. They want to give tithes to the poor people. वो गरीब लोगों को दशमांश देना चाहते हैं. They are thinking. वो सोचते हैं we are doing the great things. हम बहुत महान काम कर रहे हैं. The tithe is, जो दशमांश जो है, tithe has to be the first fruit. Here it says first fruit is a tithe. यहाँ पर बाइबल में लिखा गया कि पहली उपज, पहला फल जो है वो दशमांश है. It has to go to the hands of God. वो परमेश्वर के हाथों में ही जाना है. Not to the hands of poor people. गरीब लोगों के हाथ में नहीं. You have to give to the poor people. आपको गरीबों को देना है, but not from the tithe. पर दशमांश में से नहीं. If you are giving, instead of giving God's hand, परमेश्वर, instead of giving your tithe poor people's hand, पर गरीब लोगों के हाथ में देने के बजाय, no, if you are giving tithe in the hands of poor people, अगर आप दशमांश गरीब लोगों के हाथ में देते हो, what is the spirit in them? जो आत्मा उस गरीब में जो है, that spirit will come to you. वो आत्मा आपके अंदर आएगी. If you are giving your tithes in the hands of God, जब आप परमेश्वर के हाथों में जब आप दशमांश देते हो, the spirit of God comes on you. परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगी. Do you understand this? आपको समझ में आया ये? Do you understood this? आपको समझ आया? Yes. So don't become God to the poor people. तो आप गरीब लोगों का परमेश्वर मत बनो. Why we are giving poor people a tithe? अब हम क्यों गरीब लोगों को दशमांश देते हैं? Because we want to become their God. क्योंकि हमें उनका परमेश्वर बनना चाहते हैं. Because they have to respect to us. क्योंकि वो लोग हमारा आदर सम्मान करना They have चाहिए. to bow before us. वो हमारे सामने झुकना चाहिए. Is it right? क्या ये सही है? So that is why you should be very careful. इसीलिए बहुत ध्यान पूर्वक हमें रहना है. This tithe is, ये दशमांश जो है, this is seed. ये बीज है. Seed of your blessing. आपके आशीष का बीज. When you are giving this seed to the hands of the man of God, जब आप वो बीज देते हो परमेश्वर के जन के हाथों में, when he is praying for you, जब वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, he is putting water, he is watering to that seed. तो वो पानी डालते हैं आपके बीज के ऊपर. समझते? कर लो. If you are giving seed with other poor anyone, अगर आप बीज देते हो किसी और गरीब को, उधर seed
there the seed will become dry वहां पर दोगे तो वो बीज सूख जाएगा, because they are not praying for you. क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। They are not watering for that seed. वो लोग पानी नहीं दे रहे हैं आपके बीज को। That is why we have to remember. इसीलिए हमें ध्यान करना We है, have to put the seed हमें बीज को तो डालना है where the pastor is watering on that seed. वहां पर डालो जहां पर पास्टर उसे पानी दे। This is not only praying means. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना का मतलब, Even if you give others, अगर हम किसी और को भी देते हैं they will also bless and pray. वो लोग भी आशीष करके प्रार्थना करेंगे, But they will not have that burden of your soul. पर उनके अंदर आपके आत्मा के लिए वो जिम्मेदारी नहीं रहेगा। Why we are giving tithes? क्यों हम दशमांश देते हैं? The second reason is, दूसरा कारण ये है, this is the tax we are paying to heaven. और ये हम जो है चुंगी भरते हैं, टैक्स भरते हैं स्वर्ग के लिए। This is a tax because to protect our soul. और हमारे आत्मा को सुरक्षित रखने का हम लोग टैक्स भरते हैं, Because your soul is under your pastor. क्योंकि आपका जो आत्मा है आपके पासवान के नेतृत्व में है। He has to take care of your soul. वो आपके आत्मा का ख्याल रखेगा, He has to pray for you. वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, Then only your seed will grow. तभी आपका बीज बढ़ेगा। Understood? Praise the Lord। समझ में आया? So if you want to really see the prosperity in your life, अगर सच में आपको आपके जीवन में उन्नति प्रगति देखना है तो don't touch even 1 rupee from your tithe. छूना भी नहीं, 1 रुपया भी आपके दशमांश में का छूना नहीं। It is no need you have to give only 1/10. No need only to give 1/10. सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 में से 1 दे करके, You can give more than that. आप उससे भी ज्यादा दे सकते हो। For example, if you are some other man of God is helping you in prayer or you are connected with them, अगर कोई दूसरे पास्टर आपसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, and you want to support his ministry also because you are supporting Kingdom of God, क्योंकि आप उसको सपोर्ट परमेश्वर के राज्य में सपोर्टिंग का काम कर रहे हो तो give some offering. Otherwise, 1/10 from your salary. तो आपके पगार में से आप उनको भी दशमांश दो, या तो फिर कुछ रकम आप चुनते हो तो वो भी दे सकते हैं। Understood? समझ में आया? It is, I am not telling don't give. मैं ये नहीं कहती कि मत दो, You have to support everyone because we have to building a kingdom together. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सपोर्ट मत करो, क्योंकि हम परमेश्वर का राज्य बना रहे हैं एक साथ। But you have to know where you are. पर आपको ये पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पर हो, From where you are receiving the spiritual food. आपको आत्मिक भोजन कहाँ से मिल रहा है ये भी जानना है। Who is praying for you? आपके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? Who is taking care of your soul? आपके आत्मा का कौन ख्याल रख रहा है? If you do all these things in your life, ये सारा काम अगर आपके जीवन में करोगे तो what will happen? क्या होगा? Then your barns will be filled to overflowing. तो तुम्हारे खत्ते भरपूर होंगे। तुम्हारे खत्ते खाते. What is khate actually? खत्ते that what we collect the grains. Okay, in Kannada, khate means bank account. Understood? Okay, here khate means is like a one big vessel type. Okay, barn filling the wine. How we will keep the wine? Yes, कैसे हम दाख रस को रखते हैं? So that is the vessel. कुंड रस का कुंड। Because that time there was wheat, there was wine. That is their crop. तब गेहूं थे, धान्य थे और दाख रस भी थे। Now where will keep our money? तो कहाँ रखते हैं हम अपने पैसे को? घर में रखते, डब्बा में डाल के रखते। आटे का डब्बा। Where that is, ladies will keep some money in the rice box, sugar box. But where is our money? Where will keep in a account? So लेडीज लोग कहाँ रखते हैं? आटे के डब्बे, शक्कर के डब्बे में, चावल के डब्बे में। तो कहाँ रखना है?
लेडीज मोस्टली अकाउंट में रखते हैं। And actually, money where our money will be in the account, right? Salary will come in a account. कहाँ होता है पैसा? अकाउंट में। सैलरी कहाँ आती है? अकाउंट में। So if you honor God properly, अगर आप परमेश्वर का आदर ठीक तरीके से so करोगे, your account will be overflow. आपका जो अकाउंट है वो भरपूर भरकर बढ़ता जाएगा। This is not my word. मेरा वचन नहीं है ये। Who says here? कौन कहता है यहाँ पर? You read once again, sister. फिर से एक बार पढ़ेंगे। That only line. 9वां वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 3:9 मैं पढ़ती हूँ। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Understood? समझा? How you have to honor God? कैसे आप परमेश्वर का आदर करना है? From yesterday we are hearing, कल से हम सुन रहे हैं we have to honor God. हमें परमेश्वर का आदर करना है। How much we will honor God, जितना हम परमेश्वर का आदर करेंगे, that much we will see the blessings. उतना हम आशीष को प्राप्त करेंगे। If you read Philippians chapter 4, the 17 verses, here Saint Paul says, फिलिपियर 4:17 अगर देखेंगे, संत पौलुस कहते हैं, not that I desire your gifts, what I desire that more be credited to your account. यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ कि जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। Understood? This is the last scripture. Understood? ये आखिरी वचन है। समझ में आया? What Saint Paul says here? संत पौलुस क्या कहता है? Why is asking offering from people? क्यों वो लोगों से दान को लेता है? क्यों? Why is asking? क्यों मांगता है पौलुस? To increase your account. ताकि तुम्हारा अकाउंट में पैसे बढ़ते रहे। Your account will be overflow. तुम्हारा अकाउंट और बढ़कर बह जाए। Now how many are ready to give tithes? अभी कितने लोग तैयार है दशमांश देने के लिए? Whatever tithe, offerings, whatever. कुछ भी दशमांश, भेंट। Who you are not earning, but at your home who is working, you tell them, you explain them. हो सकता है कि आप काम नहीं करते होंगे, पर घर में जो कमाते हैं आप उनको विस्तार से समझाओ, बताओ इस बात को। How Adam and Eve sinned? आदम और हव्वा ने कैसे पाप किया? What God told them? परमेश्वर ने क्या कहा उन्हें? Fast. जल्दी बताओ। What God told them? परमेश्वर ने क्या कहा उन्हें? You can eat fruit from all the trees. तुम फल खा सकते हो सारे पेड़ों से, But if you don't eat from one tree. पर एक पेड़ से नहीं खाना। There is also tithe, right? What they did? वहां पर भी दशमांश था। क्या किया उन्होंने? What they did? क्या किया उन्होंने? They ate. What happened? उन्होंने खाया और क्या हुआ? They lost the glory. वो महिमा को खो बैठे। They fall in sin. वो पाप में गिर गए They brought death in their life. और अपने जीवन में मृत्यु को लेकर आए। So if anyone is touching this tithe, अगर कोई दशमांश को छूता है, so the same thing will happening to us. तो वही चीज आपको भी होगा। We will lose our glory. We will lose our blessings. हम अपने महिमा को खो बैठेंगे। So आशीष that को खो is बैठेंगे। why we will. The spirit of lack is in our life. और जो कमी की आत्मा है वो हमारे The जीवन में है। spirit of poverty in our life. और जो गरीबी की आत्मा है वो हमारे जीवन में The होती full है। of sickness in our life. और बीमारी की आत्मा हमारे जीवन में होती है। So that is why the read once when you go home. जब आप घर जाओगे तो एक बार पढ़ना। Read today's word scripture आज का वचन पढ़ना and meditate it और मनन करना उस पर and do what is written in it. और करो उसमें जो लिखा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जय माता दी।
Praise the Lord.